حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارکہ سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں اس میں سے دو ایک سبق آپ کی خدمت میں عرض کرنے۔ پہلے تو یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی زبان سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ تم مجھے یہ کہو کہ اے اللہ، ہماری نماز، ہماری قربانیاں، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا یہ سب اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ فرما دیجیے بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا دنیا میں رہنا، پردہ کرنا سب اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنی زندگی کے اندر 24 گھنٹوں میں سے اچھے طریقے سے سوچ کر، سمجھ کر، فکر کر غور کریں کہ ہمارے پاس 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت ہے جو ہم نے صرف اس لیے صرف کیا ہے کہ ہمارا دین کچھ تھوڑا سا آگے بڑھ جائے اور دین کے لیے ہم کچھ اپنے آپ کو پیش کر سکیں۔ اپنے وقت کا تعین کریں، اس کے بعد پھر اپنا جتنا مال اللہ نے دیا ہے اس مال میں سے آپ دیکھیں کہ ہم کیا اس میں سے اتنا کچھ نکال رہے ہیں جو تھوڑا بہت ہمارے مذہب کے لیے، دین کے مشن کے لیے کام آ جائے۔ کچھ نہ کچھ آپ باعث بنے دین پھیلانے کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیوٹی کو اس رنگ میں بیان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت تم تک پہنچ گئی ہے، اب میں تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ تم نے اس آیت کو آگے پہنچانا ہے۔ صحابہ اگر ابلاغ دین نہ کرتے، تبلیغ نہ کرتے، اپنے پاس چیزیں رکھتے تو ہم تک دین پہنچتا نہ۔ انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، روایت احادیث کا معاملہ ہو یا حفظ دین کا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ پھر ہمارے محدثین نے محنت کی اور کتابیں جمع کر کے ترتیب دے کے ہم تک پہنچائیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خیر کی بات آگے پہنچائیں، خیر کی بات۔ ہمیں بڑی مثالیں آتی ہیں، بڑی ساری چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، بڑا کچھ ہم کہہ سکتے ہیں، بڑی ہمیں کہانیاں یاد ہوتی ہیں، تو یہ تو ہمیں الجھا دے گا یہ سارا معاملہ۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم جمعے والے دن اپنے خطیب صاحب سے جو حدیث سنتے ہیں اسے اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھائیں اور پھر پورا ہفتہ گھر کے اندر، بازار کے اندر، گلی کے اندر، دوستوں میں، بچوں میں جب بھی بیٹھیں تو اپنی بات مدینے والے رسول کی بات سے شروع کریں۔ اور آپ کو ذائقہ اتنا ملے گا کہ کسی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ کو کیا شہد لگا ہوا ہے کہ ہر وقت لوگ آپ کے گرد بیٹھے رہتے ہیں، ہر وقت مجمع ہی رہتا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جی، وہ بیٹھ جائیں تو محفل ہو جاتی ہے، چلنے لگیں تو جلوس ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو کہا حضرت آپ کون سا شہد ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے شہد میاں کوئی بھی نہیں، میں نہ کسی کو اپنی بتاتا ہوں، نہ باپ دادا کی بتاتا ہوں، نہ برادری قبیلے کی بتاتا ہوں، میں تو جس کو بھی بتاتا ہوں محمد عربی کی بات ہی بتاتا ہوں۔ تو بس یہ آپ سمجھ لیں کہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ تو ایک یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی۔ دوسرا پیغام میرا آپ کے لیے یہ ہے آج کی اس خوبصورت بزم میں کہ دین اور دیندار لوگ ایک نیکی کریں کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اگر دین کی محبت نہیں بھر سکتے تو کم از کم نفرت تو نہ بھریں۔ اب تو یقین کریں کہ تکلیف روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ دین دنیا میں صرف بحث کرنے کے لیے ہے، لڑائیاں ہی لڑائیاں، مناظرے ہی مناظرے، بحث ہی بحث۔ کیا شکل دکھا رہے ہیں ہم لوگوں کو مذہب کی کہ اس میں صرف بحث ہے، لڑائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کم ناراض ہوتے تھے، لیکن مسلم شریف میں حدیث ہے، کچھ لوگوں نے شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجد کا امام لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ کوئی اتنا قابل تعزیر جرم تو نہیں تھا، نماز لمبی پڑھاتا ہے۔ تو مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غضبناک ہوئے، اور لفظ کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں، تو دور کرتا ہے۔ فرمایا خود پڑھنی ہو تو جتنی مرضی لمبی پڑھنا، لیکن لوگوں کو مختصر نماز پڑھا تاکہ وہ دین کے قریب آئیں۔ حضور مفتی اعظم عالم اسلام شہزادہ اعلیٰ حضرت
शेख मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे दादा मुर्शद, आपके खिलाफ कुछ लोगों ने किताब लिखी और बरेली शरीफ के उर्स में वो किताब बांटी गई। 24 सफ़र को उलमा की वहाँ मीटिंग होती है और हज़ारों उलमा उसमें रासिखुल इल्म लोग वहाँ मौजूद होते हैं, रासिखुल अकीदा। हुज़ूर मुफ्ती आदम ने वो किताब सामने रखी और किताब सामने रख के उलमा से कहा कि ये शरई एतराज़ है मुझ पर और ये उसका जवाब है, ये शरई एतराज़ है, ये उसका जवाब है, ये शरई एतराज़ है, ये उसका जवाब। जो शरई एतराज़ थे उनके जवाबात दे दिए। फरमाया कुछ इन्होंने ना इखलाकी एतराज़ात किए हैं तो मैं किसी की ज़ात पर उतर कर बात नहीं करना चाहता। कुछ इन्होंने ज़ाती एतराज़ात किए हैं और जो मुहज़्ज़ब कौमें होती हैं वो किसी शख्स की शख्सियत पर उतर कर, नीचे उतर कर बात नहीं करती। तो ये शरई एतराज़ात थे, ये जवाब है। तो उलमा ने पूछा कि हज़रत ये किताब कब छपेगी? तो आप फरमाने लगी छपेगी कोई नहीं है। कहा हुज़ूर ने आपके खिलाफ लिखा है तो आप कहते हैं छपेगी नहीं, आपको भी तो छापनी चाहिए। तो आप फरमाने लगे यार जी उन्होंने लिखा है तो कुछ बंदे ना इस किताब की वजह से मुझसे कट के उनसे जुड़ गए हैं। तो जब उनका ज़हन मुझसे कटा है, किसी और की तरफ जुड़ा है, तो मैं जवाब लिखूंगा तो वहां से भी कट जाएंगे, तो फिर मुंतशिर हो जाएगा उनका जहन, हो सकता है किसी गुमराही की जानिब चले जाएं। तो चलो मेरी एक ज़ात हदफ तनकीद बनी है तो कोई हर्ज नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कुछ लोगों का ज़हनी नुकसान हो। मैं लोगों को मुस्तफ़ा के दीन का प्यार देना चाहता हूँ, दीन से बेजार नहीं करना चाहता। मेहरबानी फरमाएं। मैंने जुमे में भी यूं दोनों हाथ बांध के कहा था, तकरीर करने वालों, नकाबत करने वालों, बस करो। आप अपनी तकरीर चमकाने के लिए, अपनी तकरीर चमकाने के लिए कौम को तकसीम कर देते हो। हक की बात के इजहार का माना लड़ाई तो नहीं होता। हमारे जितने बुजुर्ग थे वो सारे हक की बातें करते रहे, लेकिन इतना इंतशार, इस कदर ज्यादा जो है वो तानाजनी, इस कदर ज्यादा खौफ का मेयार। और मैंने जुम्मे में भी कहा था, फिर कहता हूं, इस जमाने में जितना कुछ ज्यादा शरारती होता है उतना ज्यादा वो ताकतवर होता है। शरीफ आदमी शरारती का मुकाबला कैसे करेगा? हमने शरारती लोगों को मजबूत कर दिया है। तो दीन से नफरत नहीं दिलाएं, लोगों को दीन के करीब करें, लोगों को दीन की मोहब्बत दिलाएं, लोगों को दीन के करीब करें, दीन का ज़ौक़ दिलाएं, लोगों को करीब करें। आज की बात है, एक दोस्त बड़ी दूर से आया है, आज की बात बड़ी दूर से। तो उसने मुझसे आके कहा कि हज़रत साहब अब तो मेरी हालत ये है कि मैं गुनाह कर करके तंग आ गया हूं। मेरे इर्द गिर्द गुनाह के मौके रहते हैं, मैं तंग आ गया हूं। लेकिन मैं एक मुंतशिर आदमी हूं, मुझे हर वक्त का वसवसा, हर वक्त की परेशानी, हर वक्त की मुसीबत। वो कहता है मैं जिस आलिम के, दरवेश के, सूफी के, मौलवी के करीब जाने लगता हूं उसके खिलाफ मुझे कोई ना कुछ मिल जाती है। तो दीन सच्चा है, खरा है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दीन पे अमल करने वाला भी को खरा मिल जाए? मैं जिधर जाता हूँ मुझे कोई ना कोई उस बंदे के खिलाफ कहानी मिल जाती है। तो याद रखें, जब लोग दीनदारों से नफरत करते हैं तो फिर दीन से नफरत करने लगते हैं। ये हमने तबाही कर दी है, हमने जुल्म की इंतहा कर दी। मेहरबानी फरमाए, ये बड़ा साफ सुथरा दीन है, ये बड़ा पारसा दीन है, ये बड़ा खरा दीन है। और ये जो आपको लोग बताते हैं ना सारे गलत हो गए, एक मैं सिर्फ ठीक बचा हूं, तूने बताओ तुम्हारी बात माने कि मदीने वाले रसूल की बात माने? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि सारी गुमराह हो जाए। तो इसलिए इंतशार का मिजाज छोड़ें और लोगों को मीठा, ठंडा, प्यारा, खूबसूरत दीन लोगों तक पहुंचाएं। मीठी बात करें और अच्छे तरीके से लोगों तक पैगाम हक पहुंचाएं। लोग कहते हैं जी मैं बात सच्ची करता हूं इसलिए तलख रहता हूं। नबी पाक से ज्यादा सच्ची बात तो कोई भी नहीं करता था। हुजूर बात भी सच्ची करते थे और लहजा भी शहद से ज्यादा मीठा होता था। तो ये कौन सी कहानी सुना रहे हो? नहीं कि मैं कड़वा इसलिए हूं कि मैं सच बोलता हूं। सच कड़वा नहीं होता, सच तो शानदार होता है, सच तो सोना होता है, सच का तो चेहरा निखरा हुआ होता है। सच कहाँ कड़वा होता है? कड़वा कुशैला तो तू है, इसलिए तूने सारी तबाही उतार दी। तीसरी बात, आज की इस गुफ्तगू में तीसरा पैगाम इमाम अली मकाम की शहादत के लिहाज से ये सुने कि जरूरी नहीं कि जो बात आप कर रहे हो सारे लोग उसे एग्री भी करें, ये भी जरूरी। तो सबको मनवाने का मिजाज भी छोड़ दें, ये भी इमाम हुसैन का पैगाम है। उस वक्त तो ढेर सारे लोग यजीद की तरफ चले गए थे,
और इमाम अली मकाम मैदान में निकले और मामूली आदमी नहीं, नवासे रसूल, जिगर गोश है बतूल। ये जो करबला की रेत पे खून बहा है, ये आपको पता है खून किसका है? ये रसूल करीम का खून है, ये नबी करीम का खून बहा है। अल्लाह करे आपको समझ आए। नबी पाक का खून बह गया, लेकिन 4.5 साल हुकूमत फिर भी यजीद कर गया। आपको किस बात की जल्दी है कि सारे लोग मान जाएं और सारे हमारे पीछे लग जाएं और सारे जो मैं कह रहा हूं उसके पीछे लग जाएं? ये आपको जल्दी क्यों है? मुझे जल्दी क्यों है? भाई वो 4.5 साल फिर भी निकाल गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जनाब जुलेखा ने इल्जाम लगाया था। हजरत यूसुफ सच्चे थे, पर पूरे मिस्र में उसने बात भी फैला दी। 12 साल जेल में भी रहे थे तो सच्चे ना, लेकिन उस सच को निखरते 12 साल लग गए। लेकिन रब करीम ने फरमाया यूसुफ सच्चे हो, पर 12 साल फिर भी जेल में रहना पड़ेगा। सच्चे भी हो, खरे भी हो, पर 12 साल जेल में रहे। पर अर्श के मालिक ने फरमाया पहले आप मिस्र के कैदी थे, अब आपका सच निखर गया है तो मिस्र का हुक्मरान बना दिया जाएगा। चौथी बात ये सुने और अच्छे तरीके से। हमारे यहां ना हमारी महफिल रह गई है, तन्हाई खत्म हो गई है। थोड़ा तन्हाई में रहना भी शुरू करें। तन्हाई में किस तरह रहना है? मुसल्ले के साथ, इबादत के साथ, दर्द के साथ, सोज के साथ, यानी ज़ौक़ के साथ। कोई नाच चलाने आप और आप हो, कलाम हो और मदीने वाले रसूल की याद हो। बेआबाद ना रखें, अपने दिल को आबाद रखें। ये थोड़ी बहुत मिल के इबादत है तो कर लें, वरना अकेले भी हम प्लानिंग ही करते रहते हैं, दोस्तों में भी साजिश ही करते रहते हैं। दफा करें, सियासतें होती रहती हैं, ये कब जान छोड़ती हैं। लेकिन कुछ ना कुछ वक्त मुसल्ले को जरूर दें। 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात अमर बिन साद इमाम अली मकाम के खेमे में आया और आके कहने लगा हुसैन बातें दो ही हैं, अब यजीद और उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद और दीगर कोई और बात सुनने को तैयार नहीं होते, दो ही बातें हैं, या आपको बैत करनी है या जंग करनी है। तो इमाम अली मकाम फरमाने लगे कि मुझे 1 रात की मोहलत दे दो, 1 रात की मोहलत, सवेरे बताऊंगा क्या करना है। 9-10 की दरमियानी रात अमर बिन साद ने कहा ठीक है, मैं सवेरे आ जाऊंगा। तो अमर बिन साद खेमे से बाहर निकला तो हजरत अब्बास बिन अली, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर बारगाह हुए। तो इमाम अली मकाम से अर्ज करने लगे भाईजान, मुझे पता है सवेरे आपने क्या फैसला करना है और आपको भी पता है सवेरे क्या फैसला करना है। तो ये बदबातन किस्म के लोग हैं, ये सोचेंगे पता नहीं हुसैन कमजोर पड़ गया। तो अभी बताना था कि हमने बैत नहीं करनी, आपने रात मोहलत क्यों मांगी? ये पता नहीं रात क्या क्या बदगुमानियां सोचेंगे। फैसला तो सवेरे भी वही होना है और अब भी वही होना है कि हम यजीद की बैत करने को तैयार नहीं है। तो आप ये भी बात कर देते। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे अब्बास तेरा क्या ख्याल है? मैंने सोचने के लिए टाइम लिया है। तेरा क्या ख्याल है कि मैंने कोई नए राह तलाश करनी है? कोई मुझे और किसी फौज के पहुंच जाने की उम्मीद है? कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना, ना कुछ सोचना है, फैसला भी वही है जिसका तुझे पता है। लेकिन भाई ये आखिरी रात बची है, कल हुसैन दुनिया से जाएगा। आखिरी रात बची है, दिल करता है कि आज की रात ना मैं रज रज के अपने रब को सजदे करूं, मैं जी भर के उसकी इबादत करूं, ये पेशानी उसके हुजूर नाज झुके। ओ यार, हुसैन इब्ने अली तो एक रात बकायदा बचाएं कि मैंने अल्लाह के हुजूर हाजिरी देनी है और तू सारी रातें ज़ाया कर देता है। तो तन्हाई में कुछ ना कुछ इबादत करें। मैं अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मैदाने करबला की हवाओं का सदका, अल्लाह ताला हुसैन इब्ने अली के खून का सदका हमारी ज़िंदगी पर्दा पोशी वाली करे और मौत ईमान वाली करे, और अल्लाह ताला हमें हर फितने से महफूज रखे और हमारी औलादों को भी हुजूर की औलाद का वफादार रखे। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।